Good morning, children. This is class 3 value education, and now we are going to do chapter number 2. We have already finished chapter number 1, and today I am starting chapter number 2. Okay, we will have a look at the value or the moral of this chapter. Here the moral or the value of the chapter is punctuality, means समय की पाबंदी या समय का पालन करना. That is called punctuality. Okay, now we will see the introduction of this chapter. It means the title of this chapter is first come first served, means जो पहले आया उसको पहले उसकी सेवा की जाएगी, या उसको कुछ मिल रहा है तो जो पहले आया उसको मिल जाएगा, जो बाद में आएगा उसको कम मिलेगा या नहीं मिलेगा. दिस सॉर्ट ऑफ थिंग हैपन्स इन द लाइफ. ओके, द पीपल who come first to reach any place, they get the benefit, and those who are late, they have that disadvantage. They don't get the advantage of getting good things in life. Okay, so now we will see what all we are going to study in this chapter. What happens when you reach school late? Either you are not allowed to enter the class or you are punished. You see, it happens in the school. Sometimes when you come late, teachers scolds you. आपको डांट पड़ती है कि why are you coming late, है ना. And कभी कभी पनिश भी टीचर कर देती है कि ठीक है, you stand up, you don't sit at the chair, on the chair, because you are late. Okay, so everything has a fixed time or a given time within which it must be done. हर चीज़ के लिए एक फिक्स टाइम होता है जिस उस ड्यूरेशन के अंदर वो काम हो जाना चाहिए. These are some basic rules which we all have to follow. कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हम सबको फॉलो करने होते हैं किसी काम को उस फिक्स्ड टाइम में ख़त्म करने के लिए. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, even the earth follows a time pattern. It completes one rotation in 24 hours. इवन जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो उनका भी अपना एक फिक्स पैटर्न होता है, एंड दे डू देयर वर्क और दे रोटेट एट अ वेरी फिक्स टाइम. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ इज़ लेट इवन बाय अ मिनट? यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. अगर कोई भी प्लैनेट जो है वो अपने टाइम से ज़्यादा या कम टाइम लेगा रोटेट करने में, तो वो क्रश हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे से क्लैश उनका हो जाएगा, बिकॉज दे डू देयर रोटेशन वर्क. ऑल द प्लैनेट्स हु रोटेट अराउंड द सन go on a fixed path and at a fixed time and at a fixed speed. अगर थोड़ा भी लेट कोई भी प्लैनेट होगा तो वो उस टाइम में दूसरे वाले से क्रश कर जाएंगे दोनों मिलके. So that will be a big blunder. So here I have explained you with this example. Now we will come to the main chapter which we are going to study. Here is a funny story about a lazy animal who didn't understand the value of time. Now we are going to study a small story about it's a funny story about a lazy animal who did not understand the value of time. Now see what happens in this story. Once upon a time all the animals in the jungle faced a great problem. एक बार जंगल के जितने जानवर थे उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई. I am explaining you in Hindi so that you understand it in a better way. They were tired of insects sitting on them. वो परेशान हो गए थे कि उनको कीड़े जो थे वो उनके ऊपर बैठते थे, उनको तंग करते थे, उनको काटते थे, इसलिए वो परेशान हो गए थे, थक गए थे. So they held a meeting and decided to meet the king of the jungle, the lion. और वो लोग परेशान हो गए तो उन्होंने एक मीटिंग करी. उन्होंने मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि हम लोगों को जंगल का जो राजा है, लायन है, किंग ऑफ द जंगल, दैट इज़ लायन, एवरीबडी नोज, उससे जगह मिलना चाहिए कि शायद वो हमारी किसी इस समस्या का हल करे. ठीक है, दे वेंट टू मीट ऑल ऑफ देम. एज यू सी इन दिस पिक्चर, दे ऑल वेंट टू मीट द लायन. They all went together. You see, so many animals are here. They all went together to meet the
king, and here the lion is sitting like a king, and he is listening to their problem. Okay, the lion heard them and approached God. Lion ने उनकी बात सुन ली, फिर वो God के पास गया, because he was not able to solve their problem. So he went to the God. God then decided to give each animal a tail to help it in various activities. गॉड ने क्या डिसाइड किया कि मैं ठीक है, मैं सब जानवरों के लिए एक एक टाइप की टेल दे देता हूँ. माने टेल माने दुम, यू नो, ऑल द एनिमल्स हैव टेल, यू नो, एंड जो विच विल help them in various activities. He gave the lion a big heap of tails and told him to distribute the tails to each animal. गॉड ने क्या करा कि उसने लाइन को एक बड़ा सा हीप, माने एक बड़ा सा ढेरी, ये ढेर कह सकते हैं, एक बंडल ढेर सा दे दिया, और उसने कहा कि ये सारी टेल्स जो हैं ये एनिमल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. ठीक है, और ऑल ऑफ यू कम टुमारो मॉर्निंग एंड चूज़ ए टेल, अनाउंस द किंग. किंग लाइन जो थे उन्होंने सब एनिमल्स को अनाउंस कर दिया कि आप कल आइए मॉर्निंग में और अपने लिए एक एक टेल चुन लीजिए. ठीक है. नाउ ऑल द एनिमल्स वर वेरी एक्साइटेड. सारे जानवर जो थे बड़े एक्साइटेड हो गए कि वी आर गोइंग टू गेट समथिंग न्यू. दे गैदर्ड आउटसाइड द किंग्स डेन अर्ली इन द मॉर्निंग. वो सब शेर की जो था, लायन जो था, उसकी डेन यानी गुफा के बाहर जमा हो गए सुबह के समय. द किंग हैड ए ह्यूज हीप ऑफ टेल्स फॉर देम टू चूज़ फ्रॉम. और किंग लायन के पास वो पूरा बंडल था जो गॉड ने उसको दिया था, हीप, वो जो ढेर दिया था लाइन्स का, टेल्स का, उसने रखा उनके सामने, उनको बांटने के लिए उसके पास था. द मंकी सेड, आई विल चूज़ दिस लॉन्ग टेल, इट विल हेल्प मी हैंग फ्रॉम ट्री ब्रांचेस टू. मंकी ने क्या बोला कि मुझे ये लंबी वाली टेल दे दो, ताकि क्योंकि मैं इस टेल के सहारे जो है वो ट्री की ब्रांचेस में भी उसको रोल करके लिपटा के और मैं लटक जाऊंगा. ठीक है. द फॉक्स सेड, आई विल चूज़ दिस बिग हेयरी टेल, इट विल डेफिनेटली हेल्प मी मूव फास्ट. लोमड़ी जो थी, फॉक्स जो थी, उसने उसने कहा कि एक बालों की, ढेर सारे बालों वाली एक टेल लेना पसंद किया. उसने कहा कि मेरे बॉडी के संग ये ज़्यादा सूटेबल रहेगी और मुझे मूव करने में, फास्ट मूव करने में मेरे को हेल्प करेगी. द रैबिट देन मूव्ड फॉरवर्ड एंड चोज अ स्मॉल फरी टेल टू मैच हिज बॉडी. उसके बाद रैबिट आगे आया, खरगोश आगे आया. उसने क्या करा कि एक छोटी सी फर वाली उसकी, जो उसके बॉडी के बालों से मैच करती हुई टेल थी, वो उसने ले ली. क्योंकि वो छोटा एनिमल था तो उसने ही चूज़ ए वेरी स्मॉल टेल टू मैच हिज बॉडी. ठीक है. वन बाय वन ऑल द एनिमल्स चोज द टेल्स दे वांटेड. और एक एक करके इस तरह सारे जानवरों ने एक एक टेल अपने हिसाब से चुन ली. ठीक है. ऑल दिस वाइल हिप्पोपोटामस वॉज अस्लीप. और इस बीच में ये जो हिप्पोपोटामस जो था, इसको हिप्पोपोटामस जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दरियाई घोड़ा. दरिया मीन्स पानी, नदी, तो वो हर समय पानी में ही रहता है. एक बहुत मोटा भारी जानवर होता है जो कि पानी में, एंड यू कैन सी दिस एनिमल इन द जू ओनली, एंड स्पेशली द जू ऑफ द बिग सिटीज़ यू विल फाइंड. और उसके लिए अलग से एक बड़ा सा पॉन्ड टाइप का घेराव बनाया जाता है, उसके अंदर ही वो बैठा रहता है हमेशा. सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट हिप्पोपोटामस. एंड व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेल्स वॉज बीइंग डन, दिस हिप्पो वॉज स्लीपिंग. वो सो रहा था, उसे पता ही नहीं. ही डिड नॉट रीच टू द लायंस डेन. बाय द टाइम ही गॉट अप इट वॉज नाइट. और जब उसकी नींद खुली तो तब तक रात हो चुकी थी, दिन ख़त्म हो गया था. ही स्टार्टेड रनिंग इरिटेटेड बाय द मॉस्किटोज़. और मॉस्किटोज़ ने उसको तंग करना शुरू किया तो उसने दौड़ना शुरू किया. नाउ ही सडनली रिमेंबर्ड अबाउट द टेल डिस्ट्रीब्यूशन. फिर उसे अचानक से याद आया कि अरे आज तो टेल का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, and I had to go there and I did not go. He ran to the lion's den but found that only one small thin tail was left. फिर वो दौड़ के लायन के den पे गया, उसकी गुफा पे गया शेर की, और उसने क्या देखा कि वहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी पतली सी टेल बची थी जो कि किसी ने नहीं ली थी.
ठीक है, ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो चूज़ करता अकॉर्डिंग टू हिज बॉडी. सो ही हैड ऑल द एनिमल्स चेस्ड अवे द इंसेक्ट्स विद देयर टेल्स. सारे जानवरों ने इंसेक्ट्स को उसको वो अपनी दुम से उड़ा सकते थे, भगा सकते थे. हिज टेल वॉज टू स्मॉल टू चेज अवे द इंसेक्ट्स. और उसकी दुम उसको जो टेल मिली वो बहुत छोटी थी कि वो इंसेक्ट्स को नहीं उससे उड़ा सकता था. ही रश्ड बैक टू द वाटर एंड रिमेन देयर. और वो फिर से पानी के अंदर चला गया और वहीं रहा. इवन टुडे, एज आई टोल्ड यू नाउ, इवन टुडे ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन वाटर. इसीलिए उसका नाम हिंदी में दरियाई घोड़ा पड़ा है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम पानी में ही रहता है और पानी में ही डूबा रहता है, बैठा रहता है. बिकॉज ही हैज़ नो लॉन्ग टेल, फरी टेल टू रिमूव द इंसेक्ट्स. कि कोई भी छोटा पतंगा, कोई कीड़ा उसको तंग करे, काटे तो वो उसको उड़ा सके. सो दैट्स वाई ही रिमेन्स इन द वाटर most of the time. Okay, now we will see something more on this chapter. This is the moral, we can say, or the value also. Time lost cannot be recalled. खोया हुआ समय जो है उसको दोबारा से हम नहीं पा सकते. समय जो एक बार चला गया वो लौट के कभी नहीं आता. ठीक है, दिस इज द मॉरल value we learn the moral or the value which we learn from this chapter is time is very precious. समय बहुत कीमती है. once it is gone it never comes back. एक बार वो चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता. no matter how much we regret, चाहे हम कितना ही उसके ऊपर पछतावा करें लेकिन वो कभी वापस नहीं आता. as a student it is very important to be punctual and follow the time guidelines. Children, as you all are students, it is very necessary to be punctual, to follow the time guideline. Means you should be very punctual in your work. Suppose a teacher has given you some homework, so you should be careful and punctual to complete that homework, especially on that particular day. Only if you plan your day properly would you be able to get the maximum benefit. क्या मतलब हुआ इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर तुम अपने दिन के पूरी रूटीन को, अपने कार्यक्रम को ठीक से प्लान करोगे तभी तुम अधिक फ़ायदा उठा सकते हो. इफ़ यू विल नॉट प्लान थिंग्स इन एडवांस देन everything will go wrong. Everything will go wrong. सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, so this is the moral. You students should be very punctual about the time. Okay, so this was the moral of this story, children. We will do the exercise work, question and answer as I have given in the PDF. You can see it and learn it for the examination. Okay, thank you.